ये सेम है सेम इसका मतलब है वो जो है वो प्रिजर्व कर ठीक है बोलिए कलर चाहिए प्रिजर्व कर दिया तो कितने घंटे के लिए छोड़ा था ये तो मुझे बताओ ना 7 hours it's Okay, Miss, now you guys have watched the video. I will name the person and that person will tell me only. Okay? And I will ask all of you one by one. Okay, let's start from Isa. Isa, in all these three classes, what they have taken in these three classes separately? Miss, सबसे पहले मैं कोका कोला डाला है. Yes, very good. सेकंड में मिल्क Yes, और में विनेगर. correct. Very good. Next question is from Ajya. Ajya, then what after taking vinegar and milk and coke in these three glasses, what you will put in inside the oil, which is common? Egg. We'll put egg. Okay, and what was the result? किसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा egg को? There is no difference. मिल्क में. Yes, exactly. Very good. Milk में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. It was intact, like it was same. Well done. Next question is from Abiha. Okay, what was the difference on the egg when you take it out from the vinegar after? Okay, how many days you will put it, and what was the end result for vinegar? Yes, Abiha. It was for they kept it in for 7 days, and then the result for the vinegar was that it was really squishy. Yes, like it would be transparent. Why it was transparent? Like you Because could have vinegar is seen transparent. inside. What does it tell you? Me? Do anyone else wants to share the idea what has happened to the eggshell in vinegar? I think it has peeled off. Yes. No, not peeled it off. It has been dissolved. जो उसका eggshell है ना? Okay. Yes. Can you conclude? Yes. Then why did it became like jelly? Yes, I'll tell you why. So in vinegar, what it actually happens? You guys know what is present inside the vinegar. Acetic acid. Well done, Isa. Well done. Great. Acetic acid is present in vinegar, and that acid attacks on the eggshell. वो eggshell पे attack करता है और उसको dissolve कर देता है. For 7 days, the acetic acid will keep fighting with the eggshell, and it will dissolve day by day, day by day. ठीक है? And then it will dissolve fully. Okay, Hidayah, I'll ask you questions. फिर क्या होता है कि why it becomes jelly like? Do you guys know कि जब have you ever you must have had the boiled egg, right? Yes. लेकिन कभी इसको किया आपने क्या? या मम्मा ही करके देती हैं boiled egg को peel off? मैं कभी-कभी करती हूँ. कभी-कभी. Miss, I didn't eat the boiled egg, but I peeled it for my sister. Okay, good. Then have you observed कि उसके eggshell को जब आप उतारते हो तो एक membrane होती है उसके ऊपर. जब भी आपने peel off किया होगा ना, you must have observed कि एक elastic सी बिल्कुल ऐसे thin membrane layer Oh, होती है उसके ऊपर. the white layer above it, the white layer above it.
यस यस, दैट विल रिमेन ऑन द एग। वो एग शेल तो ऊपर से, समझो ये रेड वाला एग शेल है, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, इट विल फिनिश, इट विल डिसॉल्व बाय द एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। बट जो उसका इनर मेम्ब्रेन है ना, इट विल नॉट डिसॉल्व, दैट इज व्हाई इट बिकम्स सॉफ्ट और वो जेली लाइक ऐसे नजर आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिदाया। Hidaya, what change did you observe when you take it out from Coke? The coke, it got all over it, and it like just got sticked on it, like it became hard on it. Okay, we will see what have you said. Okay, let me show you what has happened. Yes, the color was over it. So can we say that Coke has decolorized the egg? Yes. It has decolorized it. Would there be any effect on the shell? No. No, there would be only effect on the color. Or I think there must be some effect over the shell also. The shell must have been weakened somewhat. Because कोक के अंदर भी तो होते हैं ना some acids. कार्बोनिक एसिड होता है कोक के अंदर. दरवाजा बंद करो, मां आंटी को नहीं आने देने दे, मैं कपड़े चेंज करके। Okay. So, रबी, अस्सलाम वालेकुम रबी. मां वो किधर है यार? वालेकुम सलाम। बंद करो, बाहर जाओ ना Can you निकलो। tell me कि मैंने ये एग का एक्सपेरिमेंट क्यों किया है? It's a very tricky question. How it is helpful for our human beings? Can Yeah. you relate the किधर है composition of teeth and eggshell? वो चाबी चाहिए। Hidaya, there is voice behind you, bete. ओके, मैं मैंने शायद एक किलो करके कोक में डाले या फिर ऐसे ही डाले। ना द होल एग, ये देखो ना, होल एग डाला था, पूरे का पूरा एग बॉईल करके नहीं डाला था, इट वाज द रॉ एग, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने रवि से पूछा, तो उसका मैं पहले खुद बता दूं। हम ये पता है क्यों स्टडी कर रहे हैं? वी आर रिलेटिंग द एग शेल विद द टीथ, विद आवर टीथ, कि what would be effect on our teeth when we will drink coke or milk or thing made from vinegar. विनेगर तो वैसे हम नहीं पीते हैं, बट चीज़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा वो डालते हैं, जैसे कि मैक्रोनी में और पिकल्स में, बट वो इतना थोड़ी अमाउंट में होता है दैट इट डज नॉट इफेक्ट अस, बट मेनली व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन आवर टीथ व्हेन वी विल ड्रिंक कोक और वी विल ड्रिंक मिल्क। अल्हम्दुलिल्लाह आई तो डोंट क्या इफेक्ट पड़ेगा? नाउ रबी विल एक्सप्लेन। यस रबी, क्या फर्क पड़ता है अगर हम मिल्क यूज करें या फिर कोक यूज करें? हमारे टीथ पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हमारे यस रबी, दांतों को यू आर कैल्शियम चाहिए होती है, तो यानी कि हमने उस कैल्शियम के हिसाब से हमने एक अंडे को ले लिया, एग को ले लिया, तो हमने फिर ट्राई किया कि हम हमारे पास 3 ड्रिंक्स है, एक है सॉफ्ट ड्रिंक, एक है मिल्क और एक है विनीगर, तो हमने ना 7 डेज के लिए छोड़ दिया एग्स को उनके अंदर। फिर हमने रिएक्शन देखा कि जो यानी कि जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है उसका रिएक्शन क्या होगा कि हमारे जो टीथ हैं उससे, जैसे कि उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था, हमारे टीथ का भी कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं। और फिर हमारे पास दूसरा वेरी मिल्क गुड, था, वेरी गुड। दूसरा हमारे पास मिल्क था, तो उससे हम वैसे जो मिल्क है वो खराब हो गया, लेकिन यानी कि जो एग है हमारे पास वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि मिल्क से हमें कोई यानी कि वो बताता है कि हमें मिल्क से फायदा होगा, क्योंकि अब हमने फिर विनीगर देखा था, विनीगर के अंदर उसका जो कैल्शियम है सारा वही खत्म हो गया था, अंडे के वेरी अंदर गुड, वेरी गुड। कैल्शियम लगा होता है ना वो भी सारा खत्म हो गया, और फिर हमें जो अंडा है वो सॉफ्ट यानी कि स्किन उसकी होगी जो भी है, तो वो हमें फिर उसका एग शेल, उसका शेल होता है ट्रांसपेरेंट ना, हो गया, आउटर शेल, ट्रांसपेरेंट हो गया वो डिसॉल्व हो गया, वो सारा का सारा डिसॉल्व हो गया था, और उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन वो बाकी रह गई थी। यस। तो इट मीन्स कि हमारे भी दांत जो है, टीथ, इट कैन बी डिसॉल्व ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है ना वो डिसॉल्व होते जाएंगे अगर हम ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का यूज करेंगे, ये ठीक है, विनीगर का। या फिर विनेगर का। वैसे
मिस Yes. मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट भी नहीं किया। मेरी मम्मा बोलती सॉफ्ट ड्रिंक को स्मेल भी ना करो। ये तो आपकी मम्मा बहुत अच्छा करती हैं। ओके, तो रवि ने हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है यहाँ पर, दैट व्हाट इज द और जब सिमिलैरिटी बिटवीन आवर टीथ एंड एगशेल। और उन्होंने खुद ही बता दिया कि इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे टीथ में क्या होता है, कौन सा मिनरल होता है या फिर कौन कैल्शियम। सा एलिमेंट होता है, कैल्शियम, एग्जैक्टली। ठीक है ना। और हमारी टीथ में भी होता है बहुत ज्यादा कैल्शियम, और एगशेल के अंदर भी क्या होता है, जो बीस का कैल्शियम। कैल्शियम। ओके, तो ये कैल्शियम जैसे ही एगशेल के अंदर है, तो उसको अगर वो डीकलराइज कर रहे हैं ना पोक, इट मींस हमारी टीथ को भी वो ऐसे ही डैमेज करता है। यू नो कि हमारी टीथ में कैल्शियम के अलावा कौन से मिनरल्स होते हैं? नो मिस, यू कैन गेस करके देखो। आई डोंट थिंक इट्स प्रोटीन। विटामिन्स। विटामिन हो सकते हैं, कौन से वाले? Vitamin C, विटामिन डी। vitamin D. विटामिन डी इज बेसिकली प्रेजेंट इन आवर बोन्स। ओके, कैल्शियम It के अलावा देयर makes इज मैग्नीशियम। vitamin D makes your teeth stronger and your body stronger. योर बोन स्ट्रॉन्गर। Now it's about bone. अभी है विटामिन डी So इज बेसिकली vitamin प्रेजेंट इन E. योर बोन। अजिया ने भी अच्छा गेस किया, बट इज एक्चुअली मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, एंड देन उसके और भी आता है फॉस्फेट्स। ठीक है, अब आप याद करोगे कि कैल्शियम के साथ साथ टीथ में क्या होता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। एंड फॉस्फेट्स। ओके ओके, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट एट होम। आपके पास How? वीकेंड है, यू कैन डू इट ओवर द वीकेंड। आप एक ग्लास में कोक डालोगे, एक में I मिल्क don't have डालोगे, Coke. I don't have Coke. I only have vinegar and यू milk. कैन, I only have vinegar and milk, दैट्स व्हाई आई do सेड यू not ना, Coke. यू हैव वीकेंड, यू कैन बाय इट। ओके, तो हम जो है अब एक और टॉपिक भी देखेंगे। Miss, यस बेटे। Miss, finally, only when we are traveling, like when we are going to Medina in our car, sometimes then my mom only gives us a little bit snacks. Not other than that. She said if you want to eat something sweet, eat dates or eat fruits. Yes, she focused on the healthy eating. That is a good thing. ओके, क्या आपको पता है कि बहुत ज्यादा फ्रूट्स के अंदर कौन सा विटामिन होता है? Vitamin what? Or vitamin C. Vitamin C वेरी is गुड, वेरी गुड। in orange. सबने मैंने सही बताया। बोला। विटामिन सी भी होता है, Miss, in वही every, बताया I अदिया think, ने, अदिहा ने, हिदाया ने। विटामिन सी होता है और विटामिन Miss, ई भी होता है। Miss, यस, I think, like in all sour things, there's vitamin C. In all Yeah, sour because things. orange is sour यस, and इट्स it's बेसिकली ट्रू। vitamin C. ऑरेंज के अंदर होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन हाँ. सी, लेमन के अंदर होता है। ठीक है, Yeah, lemon has ओके more. Lime. Lime. ओके। तो लाइम के अंदर, यस, लेमन, लाइम, उनके अंदर भी विटामिन सी होता है। ओके, विटामिन सी का एक स्पेशल नेम है। यू नो व्हाट इज दैट नेम? एक एसिड का नेम है वो, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। Ascorbic विटामिन सी का acid. सेकंड नेम है एस्कॉर्बिक Ascorbic एसिड। acid. एवरीवन एल्स से इट। अजिया बोलो आप भी, ईसा, रवि। Ascorbic acid. यस, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये इन चीजों में प्रेजेंट होता है। एंड इफ यू वांट टू सी कि किसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा है, उसके लिए ना एक बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट होता है। हम ना चीजों के अंदर डालेंगे आयोडीन, और अगर आयोडीन का कलर होता है वैसे पर्पल कलर का। ठीक है, Iodine और क्या अगर है? वो पर्पल कलर, Miss, what is iodine? आयोडीन इज जस्ट लिक्विड मटेरियल है हमारे पास एक, जिसको हम ना टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, टेस्ट करने के लिए कि क्या इस गिवन सब्सटेंस में विटामिन सी प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर उस चीज में विटामिन सी हो ना, जैसे कि अगर हम अब एक जूस को चेक करना चाहते हैं,
अभी बॉट अ कैन ऑफ जूस फ्रॉम द मार्केट और हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें विटामिन सी है भी, क्या इस फ्रूट जूस को पीने से, कैन जूस को पीने से हमें विटामिन सी मिलेगा। तो फिर उसके अंदर हम आयोडीन डाल के चेक करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। क्या और होगा? अगर तो आयोडीन का पर्पल कलर बिल्कुल वेनिश हो जाए तो इट मीन्स के उसके अंदर विटामिन सी था और वो जूस बिल्कुल ठीक है। ओके लेट्स सी। तो टेस्ट ऐसे खटवा नहीं होता जब आपने डाला है और आपने पिया वो है? उसके बाद नहीं नहीं, उसके बाद उसको नहीं पीना, आयोडीन डाल के तो नहीं पीना, वो तो बस हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है। हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल ये इस विटामिन सी का ना वैसे भी मिल जाता है, टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, राइट। विटामिन सी की जी, टैबलेट्स देखी आपने? देखिए भैया मेरे पास विटामिन सी की टैबलेट है। Yes, every 1 day, after every 1 day. 1 day, skip 1 day. ओके स्ट्रॉबेरी अच्छा, आप फ्लेवर्ड लेते हो वाली, उसकी? I have orange स्ट्रॉबेरी flavor. ऑरेंज हाँ फ्लेवर्ड इसमें वाली डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। विटामिन सी मेडिसिन है, ऑरेंज फ्लेवर मेडिसिन। हाँ डिफरेंट फ्लेवर्स में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने विटामिन सी, ये देखो ए वाले सोल्यूशन में इस पर्सन ने बनाया है विटामिन सी का सोल्यूशन, बट वो जो सोल्यूशन है ना उसने वो वाइट टैबलेट का बनाया है, ठीक है। बल्कि उसमें विटामिन सी जो था ना उसके पास पाउडर फॉर्म में था, तो इसमें ए वाले में उसने डाल दिया विटामिन सी। क्या डाला उसने? विटामिन सी। सी और वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, उसका जो पाउडर था ना उसका कोई कलर नहीं था। इट कम्स इन कलर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो इन द ट्रांसपेरेंट फॉर्म। और बी वाले में वो बाद में डालेगा स्टार्च। डू यू नो स्टार्च किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है? Bread. ब्रेड में भी होता है, और किसके अंदर होता है? Croissants. I read the मेक अ lesson. गेस। Miss यस अजिया, Potato. वेरी गुड अजिया, हाउ डू यू नो इट? बिल्कुल सही बताया आपने। स्टार्च जो है ना सबसे ज्यादा पोटैटो के अंदर होता है। और ये देखो हम इसको ना चेक करके देखेंगे, एक में हमने लिया विटामिन सी और सेकंड में हम लेंगे स्टार्च। स्टार्च आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करना है तो स्टार्च के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे पोटैटो है ना, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, उसको आप बिल्कुल गार्निश करके उसका जो जूस है पोटैटो जूस, दैट इज प्योर स्टार्च, ठीक है। और विटामिन सी अगर आपने लेना है तो यू कैन टेक ऑरेंज जूस और लेमन इन वाटर, क्योंकि लेमन के अंदर भी विटामिन सी है। लाइम ओके और फिर आप वाटर। आयोडीन, यस, फिर आप आयोडीन का सोल्यूशन वो आपको बाय करना पड़ेगा फ्रॉम अ लैब, फ्रॉम फार्मेसी से मिल सकता है आयोडीन का सोल्यूशन। अब देखना आयोडीन का सोल्यूशन जैसे ही विटामिन सी में पड़ेगा ना उसका कलर वेनिश हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्च में पड़ेगा ना तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेट्स सी। ओके तो इज गोइंग टू पुट इट इन द, ये है विटामिन, ये देखो विटामिन सी के अंदर जाके उसका कलर तो बिल्कुल वेनिश हो गया। कैन यू सी इट? आयोडीन का अपना कलर कैसा था, ऐसे रेडिश ब्राउन। ओके एंड इन द सेकंड हम उसमें लेंगे स्टार्च। ओके जस्ट वेट, इसमें स्टार्च ये डाल दिया। स्टार्च बना रहा है। यस उसके पास तो स्टार्च पाउडर फॉर्म में था ना, हमारे पास पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे इसकी जगह? क्या बताया था स्टार्च के अंदर क्या होता है जिया, किसके अंदर होता पोटैटो। है? Potato. यस, तो देन वी कैन टेक पोटैटो जूस इन इट। ओके और अब Why इसके does अंदर it need देखो, to be liquid? यस Why does it need to be liquid? वी विल मेक द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल ऑफ देम ना, इससे हमें सॉल्यूशन से ही टेस्ट करना इजी होता है। लुक अब इसके अंदर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो इट विल टर्न ब्लैक, स्टार्च में इसका कलर आ जाता है ब्लैक कलर। अब ये देखो इस जूस के अंदर कौन सा विटामिन होता है? Vitamin C. यस अब अगर इसके अंदर आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन का कलर कैसा रहेगा? ब्राउन से क्या हो जाएगा? White. White. Vanish. लाइक ये वेनिश हो जाएगा ना, तो क्या इस जूस का कलर भी वेनिश हो जाएगा? Maybe. लेट्स सी। Maybe. आयोडीन का कलर तो वेनिश होगा, ये देखो, बट जूस का कलर सेम रहेगा, ठीक है।
आयोडीन अपना कलर वेनिश कर देगा जब उसको विटामिन सी वाले सोल्यूशन में डालेंगे, ये देखो। लेकिन जूस का कलर तो सेम रहेगा ना, जो उसका अपना कलर था। इसको मिक्स करेंगे तो इट वेनिश। नाउ इसके अंदर अगर स्टार्च डालो, अभी इन दिस जूस सोल्यूशन, इसमें हमने पहले क्या डाला, इसमें पहले विटामिन सी था, फिर उसमें हमने डाला आयोडीन। आई फॉर आयोडीन है, ठीक है, I2 उसका फॉर्मूला है। तो आयोडीन का कलर ब्राउन कलर जो था वो रेडिश ब्राउन है, सॉरी, वेनिश हो गया। अब इसमें हम डालेंगे स्टार्च। अगर हम स्टार्च स्टार्च करेगा। और आयोडीन, आयोडीन तो ऑलरेडी जूस में था ना, उसके अंदर हम स्टार्च डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, गेस करो। ये स्टार्च के साथ आयोडीन का कौन सा कलर आएगा, गेस करो कोई भी। यस मुझे अजियो, तो व्हाट डू यू लगता थिंक? होगा ट्रांसपेरेंट या वैनिश हो जाएगा क्या ब्लैक। ब्लैक होगा। स्टार्च के साथ कौन सा होगा? ब्लैक। ब्लैक कलर। लेट्स सी। इसमें टाइम लगेगा, ओके। इसको वैसे मिक्स मेरा करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ब्लैक ओके, ब्लैक मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ये ऐसा ऐसा फुल ब्लैक हो जाएगा, ये देखो जरा, हो गया ब्लैक, हो रहा है अभी। ओके, मिस आज का क्वेश्चन बेटे। It's not in this topic, but I just went to open my fridge because I made a sweet dish. But miss, the question is, when we miss, when we cook something, miss, like when we cook something with ghee and we put it in the fridge, and after some time, when we look, when it's done, that why does the ghee all come in top of that? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी। हमने कभी डेंसिटी वाला टॉपिक नहीं ना पढ़ा। No. Like miss, हाँ, ये नेक्स्ट वीक हम पढ़ सकते I हैं। just want to, ये देखो, एक बड़ा I just want इंटरेस्टिंग to सा see क्वेश्चन my होता है sweet कि dish that I वाई will make. पतली सी जो नीडल है, एक छोटी सी बिल्कुल लाइट वेट नीडल है, अगर आप इसको किसी दरिया में फेंकते हो तो वो नीडल नीचे डूब जाती है। लेकिन एक बड़ा सा ऐसे शिप हो, ठीक है, बड़ा सा बहरी जहाज हो, शिप हो, और वो दरिया में बिल्कुल भी नहीं डूबता। तो मैं घी के ऊपर आ जाती है, फिर सारी सारी घी ऐसे आ जाती है, हालांकि घी सबसे नीचे होती है, लेकिन उस फिर भी सबसे ऊपर आ जाती है, और फिर उसके बाद सारा खाना नीचे रह जाता है जब वो उसका सूख। आंसर है, इट्स अबाउट डेंसिटी। जो जिस चीज की डेंसिटी लेस होती है ना, इट विल ऑलवेज कम एट द टॉप। अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हो, वाटर, और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालो या फिर घी डालो, तो ऑयल ऑयल ऊपर और आता घी है। विल ऑलवेज रिमेन एट द टॉप, Why? बिकॉज वाटर इज मोर डेंस। जो मोर डेंस होता है ना, इट विल ऑलवेज बी एट द बॉटम, और जो लेस डेंस होता है ना, इट विल ऑलवेज बी एट द टॉप। Thank you, miss. I just opened my fridge, so I got a question. I was just checking what from my sisters. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये विटामिन सी को चेक करने का ना बस एक ट्रिक बताई है मैंने आपको, कि और इसका आपको बेनिफिट पता है क्या होगा। यू कैन जस्ट चेक कि जो जूस आप पीते हो लाकर शॉप से, तो क्या उसके अंदर वाकई में विटामिन सी होता है। I don't drink ठीक है, juice. ओके। और एक थर्ड टॉपिक था आज के लिए, विच वाज ORS। ORS, डू यू गाइस हैव एनी आइडिया, किसको पता है ORS के बारे में? Oral, it's Yes, और दवा oral rehydration ऐसा? solution. Oral हाँ, rehydration solution. ठीक है, ये तो आपने हिदाया देख के बता दिया ना। ईसा, यू वर टेलिंग समथिंग। मुझे तबीयत खराब होता है तो फिर ओआरएस पीते हैं। हाँ, Yes. एग्जैक्टली exactly. जब भी स्पेशली जब डायरिया हो, आपको लूज मोशन हो, ठीक है, आपका पेट खराब हो ना, पेट डिस्टर्ब हो, और क्या खा आपको रहे हो? डायरिया, डायरिया कहते हैं लूज मोशन को, तो देन फिर आपको क्या हो जाती है, बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, ठीक है, बिकॉज यू आर कॉन्टिन्यूसली गोइंग टू द वॉशरूम, और जितना भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे विल एग्जिट योर बॉडी, और आपकी बॉडी में वाटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, और उसको क्या मुझे कहते हैं, डिहाइड्रेशन। मुझे लूज Dehydration. मोशन होता है और मैं क्या था ORS, ओआरएस पीती हूँ। यस, इट्स ORS, ठीक है। उसका पूरा, ये देखो, पूरा नेम जो है, कैसा इसका नेम है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। और इसका वर्ड्स
वर्ल्ड वाइड डे जो था, वर्ल्ड्स ओआरएस डे, इट वाज 2 days बिफोर ना, जुलाई 29। अभी When? रिसेंटली हुआ इसका दिन, वर्ल्ड्स ओआरएस डे। अवेयरनेस के लिए होते हैं ये डेज। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या क्या होता है? इमाम से मेरे लिए भी राइस गरम कर दो थोड़े से। हिदाया, आपकी आज पीछे से बहुत आवाज आ रही है। Sorry, miss. My mom went somewhere, so ओके, I have. अच्छा, कैन यू टेल मी कि इसका आपने कभी ओआरएस पिया जी अजिया? मैंने पिया हुआ है। ओके, और अजिया ने? रिया ने पिया, ईसा ने भी पिया? नो मिस अजिया? मैंने भी एक दफा पिया था जब मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे फीवर हुआ था बहुत ज्यादा, हाँ, फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया थी, फिर मुझे वो पर आया था। मिस मैंने पिया हुआ है ओके, बहुत। हाँ। अच्छा, ईसा ने बहुत पिया। ईसा, इसका टेस्ट कैसा होता है? मैंने भी व्हाट इज बहुत पिया हुआ है। मिस कड़वा होता है ओके वो। ओके, थोड़ा सा गंदा लगता है। मैं तो पीती हूँ थोड़ा जब सा ज्यादा बुखार लगता होता है है। मुझे। मैं भी जब इसका मुझे टेस्ट बुखार। थोड़ा सा स्वीट और मुझे थोड़ा तो सा बहुत सॉल्टी। कड़वा और स्वीट हाँ लगता मिस, इट्स टू कड़वा। वो बस उसके अंदर थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, इफ द ओआरएस इज नॉट अवेलेबल एट होम, तो मतलब आपके पास वो साशे खत्म हो गया है, पैकेट खत्म हो गया है, एंड आपको उसकी बहुत जरूरत है, कैन यू मेक इट एट होम? है। यस यस। Maybe. कैन यू मेक इट? Yes. व्हाट डू यू थिंक कैन बी द इंग्रेडिएंट्स? ईसा गेस करेगा, क्योंकि अबीहा एंड हिदाया, यू आर माशाल्लाह वेरी आउटस्पोकन, आप बहुत शेयर कर रहे हो, तो ईसा नहीं बल्कि रवि शेयर करेंगे। रवि, आपने कभी ओआरएस पिया है? रवि, क्या बोला आपने? यस और नो, मुझे समझ नहीं आया। नो। नो, ओके। तो फिर ईसा बताएंगे। ईसा, व्हाट डू यू थिंक इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, कैसे आप इसको घर में बना सकते हो? हाँ ईसा, कैसे बना सकते हो? एक तो आपको पानी चाहिए ना, वाटर। वाटर गेस चाहिए। करते जाओ। और उसके अंदर टैंक डाल देंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, वेरी गुड। और शुगर। शुगर, वेल डन वेल डन। ईसा ने बिल्कुल सही बता दिया। आप क्या करोगे, यू विल टेक वाटर, और उसके अंदर डालोगे आप शुगर, और उसके अंदर आप डालोगे सॉल्ट, तो सिंपल सा ओआरएस बन जाएगा, इफ इट इज नॉट अवेलेबल एट होम येट। ठीक है, Miss. एट दैट टाइम, उस टाइम के लिए बन सकता है। और उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 1 liter वाटर, उसमें सिक्स वाटर। 6 tablespoon, ये 6 tablespoon आप लोगे शुगर। वाटर और शुगर उसके यस, इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, और सॉल्ट आपने लेना है 1/2 tablespoon। Miss.